شخصیت ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر زندہ دفن کرتے تھے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی, آپ نے برسر اعلان یہ فرمایا, اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے پرورش کر کے اچھی اور اس کا نکاح کر دیا, حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب ہے, میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس, آپ نے 2 بیٹیاں جس کی ہے اس کے لیے فضیلت بیان کی, میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ایک بیٹی کی. السلام علیکم دوستو, امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں, خیریت سے رہیں. تو دوستان محترم, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کی ہر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوب تقریر کرتے ہیں وہ, اور لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. رمضان شریف پر بھی انہوں نے کیا خوب تقریر کری ہے, وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے, جو رمضان شریف کے اوپر ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کی یہ ویڈیو, اس کے بعد بات کریں گے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے یہ ویڈیو. آج کی شب میں قرآن عظیم کے 4 پارے مکمل ہو چکے ہیں. اللہ عز و جل بقیہ قرآن کو ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی, آج ہم نے سورہ آل عمران کی مکمل تلاوت کر لی اور پھر اس کے ساتھ ہی سورہ نساء کی بھی کچھ آیتیں تلاوت ہوئیں. آل عمران, اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران کون ہے, یہ آل کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا, ان کا نام عمران تھا, یعنی حضرت بی بی مریم کے والد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے سیدہ بی بی مریم, حضرت مریم کے والد تھے عمران. ہوا یہ تھا کہ عمران اور ان کی بیوی حنہ, یہ دونوں لا ولد تھے, اولاد نہیں تھی. کافی سالوں تک, یہاں تک کہ ان کا بڑھاپا آ گیا, ان کو اولاد نہیں تھی. کس کو؟ عمران اور حنہ کو. ایک دن حضرت حنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بڑھاپے کے زمانے میں یہ نذر کر لیا, منت کر لیا کہ اے اللہ, تو مجھے اگر بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وہ بیٹا وقف کر دوں گی. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یہ کون؟ عمران کی بیوی حضرت حنہ, حضرت عمران کی بیوی حنہ, انہوں نے نذر کیا, منت کیا. یہاں سے نذر کرنا اور منت کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے, لیکن منت کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے ایجاد کر لیا کہ کہیں تالا لگا دیں گے اور دھاگا باندھ دیں گے تو منت ہو گئی. منت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے. ہاں, اولیاء کاملین کے دربار میں بھی ہم عہد کرتے ہیں, کیونکہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا کیا ہے, وہ سفارش کرتے اللہ کی بارگاہ میں. تو نذر جو شرعی ہے وہ قرآن سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں نیت کر سکیں آپ, یوں نذر کر سکتے ہیں آپ کہ اے مولا, اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں مسجد بنا دوں گا, یا مسجد کے لیے فلاں چیز وقف کر دوں گا, یا ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کروں گا, یا 10 روزے رکھوں گا, یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ ہوتی ہے منت کے طریقے. آپ تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا, آسان چاہیے. منت ایسی کرو, خالی دھاگا باندھ دوں گا یا چادر چڑھا دوں گا جس میں محنت کچھ نہ لگے. حضرت حنہ نے جو نذر کیا, منت کیا, وہ کیا کہ اے اللہ, اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں وہ بیٹا بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. پہلی بات تو اولاد ہے نہیں, بڑھاپے میں جا کر اگر بیٹا ہو بھی گیا تو وہ تیری بارگاہ میں وقف کروں گی. یہ ہے نذر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ. اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت حنہ حاملہ ہو گئی, بچے کے آثار نظر آئے بڑھاپے کی عمر میں. فلما وضعتھا, پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹا نہیں ہوا, بیٹی ہوئی. انہوں نے نذر کیا کیا تھا؟ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کروں گی, لیکن کیا ہوئی؟ بیٹی ہوئی. قالت رب انی وضعتها انثى, کہنے لگی اے اللہ, میں تو بیٹی کو جنم دے دی, میں نے تو بیٹی جن دیا.
वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत, और अल्लाह फरमाता अल्लाह सबसे बेहतर जानता है कि उसने क्या जन्म दिया, बेटा है या बेटी। लेकिन अब यहां बेटा बेटी का फलसफा भी खत्म करते हैं, तुम्हें औलाद में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कुरान कहता है वलैसा ज़करु कल उन्सा, अल्लाह ने ये फरमाया हाँ बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। ये नहीं कहा कि बेटी बेटे की तरह नहीं होती, कुरान कहता है बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। बेटी पैदा होने पर जो नाक भौं सकेड़ते हैं, बाज के तो घरों में तलाक की नौबत आ जाती है। जालिम है वो लोग, उनको बीवियों से या औरतों से शादी नहीं करनी चाहिए, किसी रोबोट से या मशीन से करनी चाहिए। क्या ये बेटा और बेटी पैदा करना तुम्हारे हाथ में, शोहर के हाथ में या बीवी के हाथ में? या अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक के फैसले हैं, वो जिसे जो चाहे अता करे। जालिमो तुम्हें क्या पता मेरे रसूल को भी 4-4 बेटियां ही हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 बेटियां दिया, बेटे भी दिया, लेकिन बेटे कोई हयात नहीं रहे, और जो नस्ल मेरे मुस्तफ़ा की चली वो बेटी से ही चली। आज भी पूरी दुनिया में सादात जो हैं वो किसकी औलाद में से हैं? वो सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा की औलाद में से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किसी तरफ जा रहे थे, रात का वक्त था। रात के वक्त में एक घर के ऊपर आसमान से रोशनी पड़ रही है। सहाबा देखते खड़े रह गए। कोई खास रोशनी है जो उसी घर पर पड़ रही थी, जिसको कहते हैं कि नूर का हाला है। सहाबा रुक गए और पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे मोहल्ले में ये एक ही घर पर आसमान से एक अजीब रोशनी पड़ रही है, क्या है, किस वजह से? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उस घर से मालूम करो, उस घर में 2 चीजों में से एक होगी, या तो वो लोग किसी यतीम बच्चे की परवरिश कर रहे होंगे या आज ही उनके घर में बेटी की पैदाइश हुई होगी। साहबा कहते हम घर गए, वही रोशनी वाले घर, जा करके पूछा आज तुम्हारे घर में कोई नई खबर है? तो घर वालों ने कहा अल्लाह ने आज हमें बेटी अता किया। मेरे अजीजों, हमारे यहां पहले पुराने लोग कहा करते थे पहली बेटी घी की रोटी है और बरकत वाली होती है। जो लोग जिहालत की रस्मों को अपने यहाँ पनपने देते हैं, मैं समझता हूँ कि वो मुसलमान मुआशरा नहीं है, ये गैरों से लिया हुआ मुआशरा है। यह अरब की जाहिलियत है जो बेटी पैदा होने पर जिंदा दफन करते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दी, आपने बरसरे ऐलान ये फरमाया अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दी और उसने परवरिश करके अच्छी और उसका निकाह कर दिया, हुजूर फरमाते मेरी शफात उस पर वाजिब है, मैं उसे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह एक ही बेटी है मेरे पास, आपने 2 बेटियां जिसकी है उसके लिए फजीलत बयान की, मेरे पास तो एक ही बेटी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा एक बेटी की भी परवरिश करे उसके लिए भी जन्नत है। तो ये हमारे मजहब में, हमारी शरीयत में बेटा बेटी का ये फलसफा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मिला वो इनाम है। अब मैं बात जो अर्ज कर रहा हूँ, आले इमरान में जो मसला आया है वो हज़रत हन्ना को क्या हो गई, बेटी पैदा हो गई। वो बेटी कौन? वो हज़रत मरियम। इमरान और हन्ना इनको औलाद नहीं थी, नज़र किया बेटा होगा तो वक्फ करेंगे बैतुल मुक़द्दस में, लेकिन बच्चे की विलादत में देखा क्या पैदा हुई, बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम उन्होंने रखा मरियम, और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में उसके लिए दुआएं भी की कि अल्लाह इसको शैतान रजीम से हमेशा महफूज रख। फिर वो छोटी सी बच्ची को लेकर के ये दोनों माँ बाप बैतुल मुक़द्दस में आए, मस्जिद अक्सा में आए। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा आज भी फ़लस्तीन में है, जिसको हम क़िबला अव्वल कहते हैं। वहां पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी इमाम थे और पूरी बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली भी थे, तमाम चीज़ें उन्हीं के सुपुर्द हुआ करती। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हाँ ला करके उन्होंने दे दिया, कहा हमारी ऐसी ऐसी मन्नत थी, नज़र थी, अल्लाह ताला ने हमें बेटी दिया और हम बैतुल मुक़द्दस में वक्फ करने के लिए लाए हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेटी को ले लिया। अब मैं आपको बताऊं, ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे और उनको भी औलाद नहीं थी, ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी औलाद नहीं थी।
बुढ़ापा उनका भी था। आपने बेटी को गोद ले लिया और बैतुल मुकद्दस में रख दिया, कहा कि ठीक है जाओ तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई, मैं इसकी परवरिश करता हूं। यह हज़रत बीबी मरियम की परवरिश अल्लाह के घर में हो रही है। एक मेहराब खास कर दिया गया बीबी मरियम की तरबियत के लिए। एक नमाज पढ़ने के जैसे मेहराब है, एक मेहराब हज़रत बीबी मरियम का मस्जिद अक्सा में खास हो गया। मैं क्यों मेहराब का जिक्र कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। कुरान में इस मेहराब का जिक्र आया है, बीबी मरियम को उस मेहराब के अंदर रखा गया। वो आज भी बैतुल मुकद्दस में मौजूद है, उसको मेहराब मरियम कहते हैं, आज भी है। वहां परवरिश के लिए रखा गया। अरे दूध पीती बच्ची, और उसके बाद जब बढ़ने लगी तो कई दिन तक आपने परवरिश फरमाई, साल 2 साल तक। तो 2 साल के करीब गालिबन उनकी उम्र थी हजरत बीबी मरियम की। अब कुरान कहता है कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल महराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, जब जब हजरत ज़करिया मरियम के महराब में जाते तो अलग अलग किस्म के फल वहां पर देखते थे। बेमौसम का फल, आम का सीजन नहीं आम मौजूद है, अंगूर का मौसम नहीं अंगूर मौजूद है, बगैर मौसम के भी वहां फल मौजूद होते थे, किस्म किस्म का रिस्क वहां होता था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछते हैं, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम ये सब तेरे पास कहां से आता है? हजरत सैयदा मरियम ने कहा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, वो कहती ये सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता। अब जो नुक्ता मुझे बताना है, तवज्जो चाहता हूं। तफसीर सुनने का इसी में लुत्फ है कि तफसीर सुनने के बाद आपका अकीदा भी मजबूत हो जाए, ईमान में इजाफा भी हो जाए, और यह पता चले कि सुन्नियों तुम हक जमात पर हो। बीबी मरियम कहती है ये अल्लाह की तरफ से है, रिस्क आता है। हजरत ज़करिया ने देखा कि बीबी मरियम को छोटी उम्र में अल्लाह गैब से रिस्क देता है। अब क्या किया, हजरत ज़करिया जो खुद मस्जिद के इमाम हैं, अल्लाह के नबी हैं, सबको पता है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उम्र दराज हो चुकी, लोगों को इबादत वो कराते थे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इंसानों को वो बुलाते थे। लेकिन बीबी मरियम को देखने के बाद उन्हें भी औलाद की ख्वाहिश हो गई। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि अभी आपने ये वीडियो देखी, तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।